Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the cervical cancer vaccine, which will primarily be provided to the schools, and that has been recently released by the government. So the center recently has said that cervical cancer vaccine for girls aged between 9 and 14 years will be provided primarily through schools. So यहाँ पे क्या देखा गया है कि the decision has been taken on the recommendation of an advisory group which is known as the National Technical Advisory Group of Immunization, okay, who have recommended to introduce the human papillomatosis virus vaccine in the UIP. Okay, so we have known about the UIP, which is basically covering every other types of disease that the child may render during the time of his early age. So the center has even involved the state as well as the UTs to start collating the number of girls enrolled in classes 5 to 10th in each district. And for registration, recording, and reporting of vaccination numbers, the UWin app would be used. Okay, तो ये app use किया जाएगा to directly help the peoples go for registration of such number of vaccines. तो ये जो cervical cancer है, ये होता क्या है? See, it's a type of cancer that occurs in the cells of the cervix, that is the lower part of the uterus that connects to the vagina. Okay, तो हम लोग जानते हैं about the female reproductive organ. Okay, so वहां पे जो ये cervix मिला जाता है, तो ये बेसिकली ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स है, जहां पे हम लोग देखते हैं सपोजली इफ दिस इज बेसिकली द शेप, तो ये जो लोअर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट सर्विक्स होते हैं. ठीक है, सर्विक्स होते हैं. देन यू कैन सी दिस टू बी द यूटेरस. ओके, देन वी हैव गॉट ओवर हियर द फेलोपियन ट्यूब एंड लास्टली वी कैन सी द ओवरी. ओके, सो इस साइड में हम लोग का रेक्टम रहता है, फिर ब्लडर रहता है, फिर एक छोटा सा यहाँ पे यूरेथ्रा होता है जहां से we could see about the liquid directly flows out. So therefore we can see that the cervix, which is basically the lower part, यहाँ पे जो cells of the cervix है, यहाँ पे ये बीमारी फैलते हैं. So various strains of the human papilloma virus play a role in causing most cervical cancer. So when exposed to this HPV, the body immune system typically prevents the virus from harming. And in a small percentage of people, however, the virus survives for years, contributing to the process that causes some cervical cells to become cancer cells. So cervical cancer is the fourth most common cancer in women today. It is estimated that HPV type 16 and 18 together contribute to around approximately 70% of the all invasive cervical cancers worldwide. तो आज अगर इंडियन सिनेरियो में देखूं हम लोग, तो सर्विकल कैंसर रैंक्स एज द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर इन इंडिया. ओके, ये आज सेकंड मोस्ट है. ओके, तो यहाँ पे और अच्छे तरीके से सर्विक्स को देख सकते हो कि कहाँ पे सर्विक्स आता है. ठीक है, और ये कैंसरस सेल्स होते हैं कहाँ पे? वेजाइनल वॉल के अंदर. ओके, तो ये हालत होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस सर्विकल कैंसर. तो टुडे सर्विकल कैंसर रैंक्स एज द सेकंड मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर इन इंडिया एंड इट अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स सर्विकल कैंसर डेथ. ओके, डिस्पाइट इट इज ह्यूजली प्रिवेंटेबल. ये प्रिवेंटेबल है, ये ऐसा नहीं है कि इसको प्रिवेंट नहीं किया जाता है, ये प्रिवेंटेबल है, लेकिन फिर भी लोग के अनअवेयरनेस के कारण यहाँ पे लोग छिपाते हैं. ओके, बिकॉज इट्स डायरेक्टली द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पेक्टिव वुमेन, तो ये छिपाते हैं, तो उसी के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा डेथ्स होते हैं. सो करंट एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख women are diagnosed with cervical cancer and over 75,000 die from the disease in India. तो मान लो, अगर मैं बोलूं एक ऐसे ही रफली मान लो कि 125 लोगों को अगर हो गया, तो 125 में से 75 लोग यहाँ पे ऑलरेडी मर जाते हैं. किसके लिए? जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट प्रिवेंट दिस डिजीज टू गेट स्प्रेड. तो बाकी सोच लो कि अराउंड 50 मेंबर्स, ओके, बस 50 मेंबर्स वी कुड सी दैट ये लोग बचे रहते हैं. तो देख सकते हो कि हायर प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, मर रहे हैं. दैट इज द सिनेरियो टुडे विद द सर्विकल कैंसर. तो इसीलिए हम लोग, सिंस हम लोग जानते हैं कि लाइक सर्विकल कैंसर इज नॉट क्यूरेबल, ओके, और सॉरी, इट्स नॉट समथिंग लाइक व्हिच इज वेरी मच ऑफ डेट्रीमेंटल. इट इज अ प्रिवेंटेबल एंड अ क्यूरेबल डिजीज as long it is detected early and managed effectively. So these HPV vaccines can prevent most cases of cervical cancer if the vaccine is given before girls or women are exposed to this virus.
Okay, so therefore India is expected to roll out the indigenously developed CeraVac. ये important है exam purpose के लिए भी. CeraVac, CERAVAVAC vaccine by mid 2023, and the vaccine has been received by the Drug Controller General of India's approval, and it has been cleared by the Government Advisory Panel, that is the NTAGI, जो मैंने यहाँ पे बोला था. Okay, इन्होंने भी इसको approve कर दिया था. ठीक है, and therefore we will see that it is a one-time catch-up vaccine and will be provided from the age group of 9 to 14 years of age, that is the adolescent girls who attain puberty, जिसका menstruation शुरू हो जाता है. ठीक है, and subsequently it will be introduced at 9 years. तो ये यहाँ पे हम लोग का बनाया गया है सेरावेक. तो अगर मैं इस सेरावेक के बारे में बोलूं तो इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पैपिलोमास वायरस. तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये जो बोल रही है, होता क्या है? दिस एचपीवी इज द मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ दिस एचपीवी. सो दिस more of this HPV spreads through direct sexual contact also. Okay, so यहाँ पे वो सब भी है. ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं बहुत सारे HPV वैक्सीन है, जिसके नाम है क्वाड्रिपेलन वैक्सीन एक रहता है, जिसका जानते हैं हम लोग गर्दासील बोल के जानते हैं, गर्दासील. ओके, तो ये होता है 16, 18, 6, 11 ये सब होते हैं. फिर बाइवेलेंट वैक्सीन रहता है जो सर्वेरिक्स बोलते हैं उनको. ठीक है, और एक नॉन वैलेंट वैक्सीन होते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग का टाइप्स है वैक्सीन का विच एसोसिएट्स आवरसेल्फ विद दिस HPV-1. ओके, तो ये था अबाउट दिस सर्विकल कैंसर और अबाउट दिस वैक्सीन दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द गर्ल्स ऑफ दिस एज ग्रुप इन द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इंडियन कन्विक्ट्स इन फॉरेन जेल्स. तो रिसेंटली यहाँ पे एक रिकॉर्ड निकाला गया था कि गल्फ अकाउंट्स होल्ड एंड मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन कन्विक्ट्स इन फॉरेन जेल्स. 116 फीमेल प्रिजनर्स इन 19 countries. Of around 844 Indian lodged in foreign jails, 4389 are in Gulf countries. तो मेजोरिटी कहाँ पे है? गल्फ कंट्रीज में है. तो देख सकते हो यहाँ पे यूएई में सबसे ज्यादा है 1327 प्रिजनर्स. फिर नेपाल में है, सऊदी अरेबिया, ओके, कतर, देन कुवैत. ओके, तो बहरीन, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्टली जो हम लोग का गल्फ कंट्रीज है, वेस्ट एशियन कंट्रीज है. यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी बिहाइंड द जेल्स है. तो इन लोग का रिपाट्रिएशन भी नहीं हुआ है. तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज है, वो सब देख लेना. ओके, so you could see that as long as this many peoples in 69 countries, okay, with connection of various offenses, murder to domestic violence and all. ठीक है, फिर कहाँ पे फीमेल प्रिजनर्स है, कहाँ पे मेल प्रिजनर्स है. ठीक है, तो one Indian female was convicted on charges of drug trafficking in Finland, okay, which is basically the world's happiest country. तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान में कोई नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ थोड़ा डाटास निकाला गया था, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा. ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग का लैक ऑफ रिपाट्रिएशन है, ओके, उसका फेलियर के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है. ठीक है, सी दो केरला इज अमंग स्टेट्स व्हिच सेंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल अब्रॉड, द स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ अदर ट्रांस फ्रॉम स्टेट इज नॉट अवेलेबल. So the government agency has launched Pravasi Legal Aid Cell to provide free legal assistance to non-resident Keralites lodged in these jails in various countries, especially in West Asia for minor offenses or cases in which they were falsely implicated. तो यहाँ पे Kerala has the highest number of passport holders in the country, with Malappuram ranked third in the list of districts with the most number of passport issues after Mumbai and Bengaluru. So as of 2021, it is estimated that 1.35 crore Indian nationals are residing in various countries outside India, and Gulf countries alone account for 87.51 lakhs Indians, among whom over 30 lakh are Keralites. Okay, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं केरला को देखूं तो केरला हैज गॉट मोर प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स वेस्ट एशिया एज कंपेयर टू कमिंग टू सम ऑफ द अदर एरियाज ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्री. तो ये लोग ईस्ट में भी इतना नहीं जाते जितने वेस्ट में जाते हैं. ओके, हर एक दो केरलियन डायरेक्टली वेस्ट पे ही चले जाते हैं. यू कैन सी अ लॉट मेनी नंबर ऑफ मलयाली स्पीकिंग पीपल्स इन दिस रीजन ऑफ वेस्ट एशिया. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कन्विक्स है, कन्विक्शन रेट्स है, यहाँ पे वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा है, एंड द टॉप इज बेसिकली यूएई. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. केरला गवर्नमेंट पब्लिशेस ESZ मैप्स, ओके, बफर जोन रिपोर्ट. ओके, तो रिसेंटली वी कुड सी अबाउट दैट यहाँ पे जो कंटेक्स्ट पे बोला गया है अबाउट दिस ESZ. तो केरला में ये वी कुड सी दैट द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट मैप बेटर रिफ्लेक्ट्स द ब्लॉक एंड प्लॉट वाइज डिटेल्स ऑफ domiciliation in localities that could potentially fall under the 1 kilometer sensitive buffer zone around forest. तो ये जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव बफर जोन्स है उसके बारे में बोल रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि दिस व्हाट इज दिस बेसिकली दिस ESZ जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है. सी दिस ESZs और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज
are the areas notified by the MOEFCC, that is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, around protected areas, national parks, and also these wildlife sanctuaries. So this purpose of declaring this ESZ is to create some kind of shock absorbers to the protected areas by regulating and managing the activities around such areas. So they also act as a transition zone from areas of high protection to areas involving layers protection. So how are they demarcated? See, the Environment Protection Act of 1986 does not mention the word eco-sensitive zone. But however, there is a section that is known as 3 Clause 2 Part B of the Act that directly says that central government can restrict areas in which any industries, operations or processes or class of industries are subject to certain safeguards. Okay, so therefore यहाँ पे ESZ के द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि an ESZ could go up to 10 kilometers around a protected area as provided in the Wildlife Conservation Strategy 2002. And moreover, in the case where sensitive corridors, connectivity, and ecologically important patches are there, crucial for landscape, linkages are beyond 10-kilometer width. Okay, so therefore, today we could see some of the permitted number of activities. Supposedly, ongoing agriculture, horticulture practices, rainwater harvesting, ये सब permitted है. Prohibited कौन सा है? Commercial mining, okay, then industries that are causing pollutions, तो ये सब है. So recently, what is the recent judgment that the Supreme Court has given in relation to this uproar in Kerala? See, on the recent judgment, we could see that यहाँ पे Supreme Court के द्वारा बोला गया है कि like all states to have a mandatory 1 kilometer ESZ from the demarcated boundaries of every protected area. So it also stated that the no new permanent structures or mining will be permitted within this respective ecologically sensitive zones. And if the existing ecologically sensitive zone goes beyond 1 kilometer buffer zone, or if any statutory instrument prescribes a higher limit, then such extended boundaries shall prevail the court as per the live law report. So why are people protesting against it? See, there is a high density of human population near the notified protected areas. So farmers groups and political parties have been demanding that all human settlements be exempt from the ESZ ruling. And the total extent of the wildlife sanctuaries in Kerala is 8 lakh acres. So if 1 kilometer of ESZ is demarcated from their boundaries, around 4 lakh acres of human settlements, including farmlands, would come within their respective purview. So इसी के बेसिस पे यहाँ पे अभी थोड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि इनको डेमार्केट ना किया जाए. ठीक है, तो अभी देखते हैं इन लोग के द्वारा भी लाइक एक ऑब्वियसली इट्स अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, तो अभी देखते हैं यहाँ पे इन फ्यूचर क्या होता है. ओके, कैसे डेमार्केट किया जाता है. ठीक है, सो अभी देख के हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज में हम लोग लेके आएंगे कि व्हाट विल बी द डिसीजंस डायरेक्टली हैज टेकन अप बाय द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट इन रिस्पांस टू दिस एससी वर्डिक्ट. तो ये बेसिकली जो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी के बेसिस पे ये घिरता रहता है. तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ दिस इडुक्की इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस. तो इडुक्की के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस ये अभी बंधा हुआ है तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ डज इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन फंक्शनिंग, कौन से लोकेशंस में है, क्या क्या फिजियोग्राफी डिवीजन है, ये देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पंचायत का बाउंड्री कहाँ पे है, ब्लू कलर वाला है, इडुक्की वाइल्ड लाइफ कहाँ पे है. Then we could see about the settlements, then we could see about the buffer zone recommended by forest department. तो यहाँ पे buffer zone बनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली पंचायत जो बाउंड्री है उसके साथ डायरेक्टली क्लैश करते हैं. तो ये बेसिकली हुआ है. ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे बफर जोन बनाने के लिए बोला है. ठीक है, सो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, देखते हैं बाद में क्या होता है. चलो, इंडिया रशिया एब्सटेन्स एट यूएनएससी एट म्यांमार. तो रिसेंटली नॉट ओनली इंडियन रशिया, तो यहाँ पे इवन वी कुड सी दैट चाइना ऑल्सो like left its votes or remain neutral when some of the vote against Myanmar was directly into prominence. Okay, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि म्यांमार में ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, अराउंड 24 मंथ्स मोर, जहां से ये लोग का मिलिट्री रूल शुरू हुआ है और इनका जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ओके, अंडर द प्रेसिडेंट विन मिंट एंड स्टेट काउंसिलर ऑंग सान सू ची, दे आर बेसिकली कैप्टन ऑफ द जेल्स. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक रिवोल्यूशन लाने के लिए चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंडिया और रशिया एंड इवन चाइना डायरेक्टली एब्सटेन इट्स वोटिंग बिकॉज वी नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंट्री लाइक म्यांमार, कि म्यांमार हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. वी शेयर अ बाउंड्री ऑफ अराउंड 1700 kilometers with Myanmar over here. Also, if we wants to connect our northeastern states well, then we are going with a project which is known as the Kaladan multimodal project, जिसके लिए Sittwe port in Myanmar is very much important. Also, we will be trying to connect Sittwe to the region of Paletwa, from where we will connect Aizawl, so that we could have a better means of communication during the time of emergency, instead of not only relying on this chicken corridor, which is this area.
ओके, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग ने अपने कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे एब्सटेन किया है। ठीक है, चाइना को भी ये वाला जगह बहुत चाहिए, चाइना भी अपना बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार के साथ। ओके, ऑल्सो दिस म्यांमार रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर चाइना टू हैव अ हेजीमोनी इन द बे ऑफ बंगाल। तो उसी के बेसिस पे चाइना ने भी यहाँ पे एब्सटेन किया है, और यहाँ पे ऑब्वियसली रशिया इज ऑल्सो प्रो मिलिटरशिप। तो इसीलिए रशिया ने भी यहाँ पे, सिंस बाकी जितने भी लाए थे, यूएस ने लाए थे, यूके लाए थे, ये सब ने तो म्यांमार के अगेंस्ट में ही वोट किया है, तो ऑब्वियसली रशिया तो उनके अगेंस्ट में ही जाएंगे। तो इसीलिए वी हैव सीन दैट फॉर आवर कंट्री इंटरेस्ट वी हैव डायरेक्टली एब्सटेन फ्रॉम दिस वोटिंग इन दिस यूएनएससी, जिसके टोंट दिया जाता, नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे वोट कर देते तो यहाँ पे पास हो जाता कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस व्हिच कुड हैव इंपैक्टेड द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एज वेल एज म्यांमार। ओके, तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज जी ने यहाँ पे एब्सटेन किया वोटिंग। ठीक है, चलो लास्ट में आते हैं एडिटोरियल। इन यूएस सैंक्शंस द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जाया है अबाउट द डब्ल्यूटीओ। ओके, अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ। सो वी नो अबाउट द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ पहले क्या था? गेट था, GATT। ओके, 1947 में। तो ये बना डब्ल्यूटीओ 1995 में। फिर मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग ने देखा एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी खोला गया, एक जनरल काउंसिल बनाया गया, और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी बनाया गया, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, सो आज ये जनरल काउंसिल के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं। गुड्स काउंसिल का एक कैटेगरी आता है, सर्विस काउंसिल का एक आता है, ठीक है, एक आता है ट्रिप्स काउंसिल का, TRIPS, ट्रिप्स काउंसिल, और लास्ट में आता है ट्रेड निगोशिएशन कमिटी। So today we know that the principles of the WTO, that is trade without discrimination, free trade, okay, then transparency, promoting fair competition, encouraging development and economic reforms, तो ये उन लोग का main principles है। So today we have seen about that how the US has directly stand on some of the reply done by the respective panel of WTO. So US ने यहाँ पे justify किया है कि कैसे tariff hikes are allows, so how the tariff hikes could deviate from their trade obligations on grounds of national security. So we could see that even the panel directly said about that it is very much non-justified with the actions that has been taken during the time of this emergency, during the time of this global slowdown. तो आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे global slowdown हो रहा है because of Russia-Ukraine war. So therefore today, so we have to make some of the better steps so that we could make some of the moves so that this whole economy could be directly been preserved or can be protected from any type of influence coming in from the outer world. So आज यहाँ पे बोला गया है कि how this neoliberal order, that is the independent economy and security tracks, have started to converge, thus heralding the geo-economic order today. Also, the increasing use of national security to justify economic nationalism is an attempt to blunt the possibility of international courts reviewing state actions. And this explains the US argument that the national security defense is self-judging and non-justiciable. So the geo-economy order will inevitably lead to international trade lawlessness. So the US rejection of the WTO's panel ruling called it flawed, and this will only embolden other countries to pursue unilateralism and economic nationalism. तो आज यूएस और डब्ल्यूटीओ के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उसके लिए दूसरे कंट्रीज को बल मिलेगा डब्ल्यूटीओ का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करने के लिए। तो ये बेसिकली सही पाथ नहीं है। सो यूएस शुड बी मोर कमिंग टुवर्ड्स सम ऑफ द डिप्लोमेटिक टॉक्स विद डब्ल्यूटीओ, और ये जो आउटराइटली रिजेक्ट करने का बात है ये बेसिकली ना हो सके। ओके, so therefore we need to see that how these developed countries are reacting, and therefore we need to have an independent foreign policy towards WTO. तो हम लोग का यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म फॉलो होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, यूएस चिल्ला चिल्ला के पागल हो गया है इतना दिन तक कि प्रोटेक्शनिज्म बहुत है इंडिया में, फेयर कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कंट्री का जो इंटरेस्ट है वो पहले रखते हैं। बिकॉज टुडे इवन इफ यूएस सेज, तो यूएस का जो मन किया उन्होंने बोला, तो इसके लिए बहुत सारे ट्रेड इकोनॉमिक्स इधर का उधर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपने कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं और फिर दूसरे कंट्रीज आते हैं। तो इसी के वजह से हम लोग का इंडिया को भी एक ऐसा ही अप्रोच अपनाना चाहिए जो कि एक लिबरल और एक सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से डब्ल्यूटीओ को भी मैनेज करके रखे। ओके, तो दैट इज द थिंग अबाउट द editorial. Okay, so we have this 5 number MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our Telegram as well as WhatsApp channel for further updates. So that's all for the day. Thank you and Jai Hind.